check the homework. See. Homework sum number 7. Check the solution, all of you. Yeah. Purchase machinery of 95,000 and paid 5,000 rupees as freight. And you'll see that. Purchase machinery of 95,000 and paid 5,000 rupees as freight. So your entry should be machinery account debit to cash account 1 lakh rupees. Freight अलग से नहीं दिखेगा. It will be added up to the cost of machine, right? So machine account debit to cash account 1 lakh of rupees. Okay. Purchase goods of 1,50,000 and amount paid by bank. Your entry should be purchase account debit to bank account 1,50,000. Purchase account debit to bank account 1,50,000. Purchase a laptop from Nagesh and company worth 1,80,000 at 18% GST. Now this is clear cut on credit basis. The entry should be what? Laptop account debit, input CGST account debit, input SGST account debit to Nagesh and company. Okay. Laptop account debit should be 1,80,000. Input CGST should be 16200. Input SGST should be 16200. To Nagesh and company. To Nagesh and company, it should be 216,400. 216,400. Is that correct? 212,400. 212,400. Sorry, 212,400. बराबर है? Got it, all of you? Laptop account debit, input CGST debit, input SGST debit to Nagesh and company. Goes on credit. Laptop, input CGST, input SGST to Nagesh, 1,80,000. Then 16,200, 16,200 and 212,400. Then paid into Bank of Baroda 70,000. Your entry is Bank of Baroda account debit to cash account. The bank to cash. You're putting the money inside the bank. Paid for rent 4,000 and commission 3,000. Your entry is rent account debit, commission account debit to cash account. Okay, debit all expense and cash is going out. So credit what goes out. Rent account debit, commission account debit to cash account. Bought goods from Tushar Company Limited 1,20,000 at GST 12% and paid half the amount by RTGS. So this is partly cash, partly credit. Got that? Partly cash, partly credit. So first step is 1,20,000 pay you take GST, 66% CGST, SGST, that is 7200, 7200, and the total amount is 134,400. 134,400 को आप divide कर दो cash और credit में. So 134,400 का half होता है 67,200. So your entry should be, I'm just writing down over here, it should be purchase account debit, input CGST debit, input SGST debit to Tushar to bank. Okay, purchase, input CGST, input SGST to Tushar to bank, and purchase account debit should be 1,20,000. Input CGST will be 7,200. Input SGST 7,200. And to Tushar to bank. To Tushar to bank will be 67,200. 67,200. Is that clear? 67,200. 67,200. To Tushar to bank. Partly cash, partly credit it is. All of you got that? Purchase account debit, input CGST debit, input SGST debit to Tushar to bank. Partly cash, partly credit. तो GST पहले ऐड कर देने का और फिर डिवाइड कर देने का कैश और क्रेडिट में. Okay? So कैश दे रहे हैं, that is चेक दे रहे हैं, RTGS दे रहे हैं, sorry. तो to bank account via RTGS we are paying,
and to Tushar will be 67,200. Divide that portion into half, whatever it is with GST amount. Usko. Got it? Then we have cash purchases of 50,000 and the amount is paid by check. Check से दिया तो bank account आना चाहिए. Entry should be what? Purchase account debit to bank account. Purchase account debit to bank account 50,000. Invoiced goods to Satish of 80,000 at 12% GST and amount received by check. Invoiced goods मतलब sale. Okay, invoice मतलब bill. मतलब अगर हमने invoice दिया है किसी को मतलब it is sale. Invoice आया है मतलब it is purchase. जो seller होता है वो bill बनाता है ना. तो invoiced goods का मतलब sale. ये सबको पता चला? Invoiced goods and received the amount by check. So they are talking about cash sales. Received an invoice and gave the money, that means it is cash purchase. Okay. So invoiced goods to Satish of 80,000 at 12% GST and amount received by check. आपका entry होना चाहिए. Your entry should be bank account debit to sales account. Check से आ गया पैसा. Bank account debit to sales account to output CGST to output SGST. Okay. Amount of sales is 80,000. 12% is GST मतलब 6% तो मतलब 4,800. Output GST तो credit ही करना है because it's your liability. Okay, आपकी liability बढ़ रही है तो credit और ये पैसा लेके आप government को pay off कर दोगे. And total amount is 89,600. 89,600. Is that clear? So bank account debit to sales to output to output. Got it? Then paid for telephone charges rupees 90,000. Entries telephone charges to cash 90,000. Telephone charges to cash 90,000. या telephone to cash भी लिख सकते हो, no problem at all. Telephone to cash या telephone charges to cash 90,000. Mrs. Varsha bought goods from us of 90,000 at 12% trade discount. So she purchased from us, so we sold to her obviously. So your entry should be Varsha to sales. Varsha to sales 90,000 पे 12% minus कर दो, that is 10,800. So net amount is 89,200. So Varsha to sales should be 89,200. Varsha account debit to sales account 89,200. All of you got that? 79,200. Oh, sorry, 79,200. Yeah. Varsha account debit to sales account 79,200. Varsha account debit to sales account 79,200. Yeah. Purchase goods from Abhijit and Sons 1,50,000 at 18% GST. So again, you are buying on credit. So if 1,50,000 पे GST लगा दो 99%, 13,500. आपका entry क्या बनना चाहिए? Purchase account debit, input CGST debit, input SGST debit to Abhijit. Okay. Purchase account debit, input CGST debit, input SGST debit to Abhijit. Purchase में जाएगा आपका 1,50,000. Okay. Input CGST, input SGST. That is 99%, 13,500. And to Abhijit, it will be 1,87,000. 1,77,000. 1,77,000. Yeah. 1,77,000. All of you got that? Purchase account debit, input CGST, input SGST to Abhijit 177,000. All of you clear? Got it? Okay, ये आपने क्रेडिट पे खरीदा है, पार्टी का नाम दिया था, कैश के बारे में कुछ नहीं दिया था, so it was a credit purchase. Okay, purchase input to party. Then paid to Abhijit and Sons and received 10% cash discount by check. तो हमने चेक से पेमेंट कर दी अभिजीत की और 10% सीडी मिल गया. अब सीडी किस पे लेने का? बहुत सिंपल सी चीज है, इस पे लेने का. सीडी यू हैव टू टेक इट ऑन व्हाटएवर अमाउंट यू आर सपोज्ड टू पे टू अभिजीत. ओके, थोड़ा फंडामेंटली रॉन्ग है एक्चुअली. आपका डिस्काउंट है ना 1,77,000 पे नहीं होना चाहिए. इट शुड बी ऑन 1,50,000. जो आपने गुड्स खरीदा है ना उसी पे कैश डिस्काउंट होना चाहिए. जीएसटी पे कोई डिस्काउंट नहीं होता है. लेकिन थ्योरी में अज्यूम करना कि वो फुल अमाउंट पे है और कॉलेजेस आल्सो आर फॉलोइंग द सेम थिंग, सो वी आर डूइंग दैट. इज दैट क्लियर? तो फंडामेंटली थोड़ा सा रॉन्ग है वो. ओके, एक्चुअल सर्कमस्टेंसेस में आपको अमाउंट ऑफ डिस्काउंट पता होता है तो झंझट नहीं आता है प्रैक्टिकली.
यहाँ पे आपको परसेंटेज दिया हुआ है, तो जो अमाउंट पेंडिंग है ना, नॉर्मली जैसे करते हो उसी पे डिस्काउंट लेना। बेसिकली ऐसे ही सोचना कि अभिजीत को 1,77,000 देना था, ठीक है, उसका 10%, 17,700 इज डिस्काउंट। ओके, 17,700 इज डिस्काउंट। तो आपका एंट्री क्या बनेगा? वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, अभिजीत अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अभिजीत टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड, देना था 1,77,000, 17,700 का डिस्काउंट अर्न कर लिया, और टू बैंक आएगा 1,59,300, आई थिंक 1,59,300। इज दैट क्लियर? दिस शुड बी योर एंट्री एंड अमाउंट। ओके, डिस्काउंट डायरेक्टली जो अमाउंट पेंडिंग है उस पे ले लेने का। इज इट क्लियर? सीडी कॉम्पोनेंट। ओके, so 1,77,000 पे 10%, 17,700 to बैंक में बैलेंसिंग अमाउंट 1,59,300। okay, then we have paid for advertisement 8,000 and brokerage 12,000। now advertisement brokerage दोनों separate accounts हैं, तो separate account लिखना है। advertisement account क्लब कर सकते हो क्योंकि एक दिन पे हो रहा है एंट्री, सॉरी। so advertisement account debit, brokerage account debit to cash। advertisement account debit 8,000, brokerage account debit 12,000 to cash 20,000। so if you got that, पर ब्रोकरेज उसमें ऐड नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, ब्रोकरेज किस में? देखो, ब्रोकरेज एक एक्सपेंस है जो हम ब्रोकर को देते हैं ना, मिडल मैन को। ऐड कब करना है और किस में करना है? फिक्स्ड एसेट पे। व्हेन यू बाय एन एसेट एंड एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड, सो यू ऐड अप दैट sorry, you add up that expense to that asset because one time है। अगर एसेट पे हो रहा है ना तो आप उसको ऐड कर देना, ठीक है। बट अगर नॉर्मली एक्सपेंस पे करो, मतलब ये गुड्स का है, गुड्स का बताया था आपको, याद है? गुड्स पे कैरेज हो रहा है, गुड्स पे ब्रोकरेज हो रहा है, गुड्स पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो अलग से दिखाने का। एडवर्टाइजमेंट तो एक अलग एक्सपेंस है, ब्रोकरेज एक अलग एक्सपेंस है, और कोई एसेट तो इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे, कोई एसेट खरीदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी खरीदी है उस पर ब्रोकरेज पे किया है, या मशीन खरीदी है उस पर ब्रोकरेज पे किया है, ऐसा तो कोई एसेट नहीं आ रहा है ना। अगर कोई एसेट आ रहा होता तो हम उसको ऐड कर देते। अलग से एक्सपेंस दिया है ब्रोकरेज, तो ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट। that means that brokerage is on goods, not on asset, so it is going to get incurred every year, so it won't affect your consistency, your comparability। आपको प्रॉफिट्स को इफेक्ट नहीं करेगा, हर साल होने वाला है, एक साल का बेनिफिट वाला खर्चा है। इज दैट क्लियर all of you? Yes. Yeah, so advertisement, brokerage to cash। okay, bolo, any doubt now? Anyone in the entries? Tell me. Still anyone hasn't understood any particular entry, then please tell. कैश परचेसेस मतलब क्या होता है? Sorry, cash purchases मतलब गुड्स आर परचेज फॉर कैश। जो वो परचेसेस ही लिखना होता है ना? या परचेज अकाउंट गुड्स के लिए। एंड कैश सेल्स मतलब सेल्स ओनली ना? हाँ, गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश, यस, Okay. सेल्स एंड कैश। बाद में देखने का, चेक है, आरटीजीएस है तो बैंक आ जाएगा, बट परचेज और सेल अकाउंट फॉर गुड्स विल बी परचेज एंड सेल्स अकाउंट। ओके, टेल मी, ऑल ऑफ यू कंफर्टेबल? डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना है, सीडी कैसे कैलकुलेट करना है, क्लियर है? फाइनल अमाउंट जो पेएबल अमाउंट है उसी पे। एनीथिंग एल्स? वो आपने बोला कि जीएसटी पे सीडी लगाने का, तो फिर उसका जीएसटी कम होता है? नहीं, जीएसटी कम नहीं हो रहा है, जीएसटी कम नहीं हो रहा है। वो जो डिस्काउंट है अपने जेब से ही दे रहा है वो एक्स्ट्रा। जीएसटी तो वो पूरा ही देगा गवर्नमेंट को, जितना कलेक्ट किया ना 13,500 27,000 ही देगा। जो ये 17,700 है पूरा अपने जेब से जा रहा है उसका। दैट इज फुल अमाउंट गोइंग फ्रॉम हिज पॉकेट, उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्लियर? इसलिए मैंने बोला वो टेक्निकली थोड़ा सा रॉन्ग है फंडामेंटली, बिकॉज तुम्हारा अभिजीत जो है उसको देना था 1,77,000, उसमें जीएसटी भी था। एक्चुअल गुड्स का वैल्यू उसको देना है 1,50,000, तो एक्चुअली सीडी 1,50,000 पे 10% 15,000 होना चाहिए। बट इधर थियरी में एंड कॉलेजेस आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग, सो वी आर डूइंग दैट। प्रैक्टिकली यू वोंट हैव दिस इश्यू, क्योंकि प्रैक्टिकली परसेंटेज में ऐसा डिस्काउंट होगा ही नहीं बाहर। लेटर ऑन जब भी डिस्काउंट आता है तब अमाउंट होता है फिक्स कि भैया ये अमाउंट है, ये अमाउंट का डिस्काउंट आप दे दो तो झंझट नहीं है उसमें। सर
you said that exam में there are 26 till 26 sums are there. So there are many sums we have not done also. So that अरे 26 मतलब 1 to 26 सब नहीं जो हमने क्लास में किया था ना लास्ट 26 सम, हाँ ऐसे okay. क्लास में किया हुआ सम मतलब वॉट एवर डन टिल लास्ट लेक्चर, वॉट एवर डन टिल थर्सडे, दैट इज देयर फॉर पोर्शन, वॉट एवर डन इन क्लास। चलो बढ़े आगे। जर्नल नहीं है ना, जर्नल है, जर्नल क्वेश्चन 26 तक है कि सर आपने 26 तक करा उतना ही है? मैंने क्लास में थर्सडे तक जितना करवाया है उतना ही है। थर्सडे तक हमने क्लास में जितना किया है ना, आपके नोट्स में आपने लिखा होगा उतना ही है, दैट्स इट। ओके, जो नहीं करवाया है वो नहीं है टेस्ट के लिए, टेंशन मत लो, उसके लिए और टेस्ट होंगे आगे। जर्नल चैप्टर के ही 2-3 टेस्ट लिखने वाले हो आप, वास्ट चैप्टर, ठीक है। नाउ comfortable with this, we move ahead to the actual problems now. Take the sheet quickly. So what we do today won't be included in the test, no? Won't be included in the test. Only whatever done till Thursday. Last lecture तक जो किया था वही है टेस्ट के लिए, okay? Now you need to take sum number 21, 21st sum. 21st sum in the books of Mr. Gajanan. So you can write in the books of Gajanan journal entries या फिर in the journal of Gajanan. दोनों मत लिख देना, in the books of Gajanan, in the journal of Gajanan journal entry. Don't write like that. Write in the books of Gajanan journal entries या in the journal of Gajanan. दोनों में से एक. So I'm writing in the books of Gajanan, Gajanan traders या Gajanan जो भी दिया है. I think they have given only Gajanan. Journal entries. Today we are going to learn something new. This is not going to come for the test. Okay, next test में आएगा, आगे वाले पार्ट में, इस टेस्ट में नहीं है. Number 21. Okay, 21st problem. The video is on Dishita, Bansi. So I have network issues, so can I keep it off? Okay, okay, okay. बंसी का तो नेटवर्क इशू नहीं दिख रहा है. Yes, Bansi, turn on the video. starting. I can understand those who have got network issues. They lie in the bottom corner of the screen automatically. जिसका नेटवर्क सबसे फास्ट होता है वो स्क्रीन के ऊपर दिख जाता है ऑटोमेटिकली, जिसका कम होता है वो एकदम. सम नंबर 21. प्रॉब्लम (21st sum). All of you have drawn. Business as on 1st April 2012. Journalize the following transactions on 1st April 2012. You can see cash at bank 2 lakh 10, machinery 2 lakh, furniture 50,000, computer and printer 1 lakh, sundry debtors 50,000, sundry creditors 40,000. Can you see that list? Now, whenever you come across such list at the beginning of any problem, okay, it indicates that this is not the first year of the business. This is a continuing year.
This is not the first year of a business. This is a continuing year of a business. How do you understand that? How do you recognize that? Because they have given you some list, some values of assets and liabilities at the beginning of the year. Can you see that? It means that ये जो values हैं, ये already इतने asset और liability business में present हैं शुरुआत से. ठीक है? So this is not the first year of a business. That is one thing. क्योंकि फर्स्ट ईयर होगा तो ये लिस्ट नहीं दिखेगा आपको. अब तक के आपने सब में मेजॉरिटी सम में जो देखा था, you come across the first entry that is commenced business with so and so, started business with so and so, yeah, the cash, goods, furniture, stock, livestock, motor car. So वो start कर रहा था business. That was the first year of the business, right? So this, whenever you find in ये problem है या ऐसा कोई problem है जहाँ पे आपको list of asset and liability दिख जाती है, it indicates that this is not the first year. This is a continuing year of the business. One part is clear? Now, what to do with that list? What are we supposed to do with that list? So whenever you come across such list, you are supposed to pass one extra entry for that, okay, for that list. They will not specify to you whether you are supposed to do it or not, okay? It is assumed that वो जब भी आपको opening values दिख गया assets और liabilities का, तब आपको ये entry जरूर pass करनी है. What is that entry? This entry is called as an opening entry. This entry is called as an opening entry. Okay. Now let me explain. I'll go into detail. पूरा बता देता हूँ मैं. फिर किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है? अब ये ओपनिंग एंट्री क्या चीज है? ओपनिंग एंट्री क्या हर साल पास करनी है? क्या बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस में भी पास करनी है? हर महीने पास करनी है? कब करनी है? तो ओपनिंग एंट्री जब बिजनेस स्टार्ट होता है तब तो बिल्कुल, क्योंकि तब कमेंस्ड बिजनेस की एंट्री होती है ना, कैश वगैरह वगैरह, स्टॉक, लाइव स्टॉक, फर्नीचर टू कैपिटल, वो तो हमने सीखा हुआ है ऑलरेडी जब ओनर स्टार्ट करता है बिजनेस, ठीक है? तो तब तो ओपनिंग एंट्री आने का सवाल नहीं है. तो कब आएगी? तो जब बिजनेस स्टार्ट हो जाता है उसके नेक्स्ट ईयर से, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स. तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, एवरी ईयर के बिगिनिंग डेट पे, एवरी ईयर के फर्स्ट डेट पे, एवरी ईयर के फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर पे ये ओपनिंग एंट्री पास होती है. ओके, एक ही बार पास होती है पूरे साल में. कब पास होती है? एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, नॉट द वेरी फर्स्ट ईयर, बिकॉज वेरी फर्स्ट ईयर द ओनर इज पुटिंग द मनी, वी हैव डन द एंट्री, कैश वगैरह टू कैपिटल एंड ऑल. सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स ईयर के बिगिनिंग में एक बार ये एंट्री करनी होती है, ओपनिंग एंट्री, ठीक है? अब क्यों करनी होती है और क्या होती है ये देखो. ये ओपनिंग एंट्री में आपको जो लिस्ट दिखाई देगी वो हमेशा एसेट और लायबिलिटी की दिखाई देगी. हमेशा ऊपर चेक करके देखोगे ना ध्यान से, एक्सपेंस इनकम नहीं दिखेंगे वहां पे आपको, एसेट और लायबिलिटी ही दिखेंगे, एसेट और लायबिलिटी ही दिखेंगे. ओके, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि फर्स्ट ईयर जब खत्म हुआ था तब आपने क्या किया होगा? आपने अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लिया होगा इनकम माइनस एक्सपेंस करके. और वो प्रॉफिट लॉस कहाँ जाता है? मैंने बताया हुआ है, आपको याद है? जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है बिजनेस का, व्हाट डू यू डू एट द ईयर एंड? वेयर डू यू ट्रांसफर दैट प्रॉफिट और लॉस? अल्टीमेटली बिलोंग्स टू whom? Profit and loss account. Owner. अल्टीमेटली बिलोंग्स टू द Balance ओनर, sheet. राइट? या बैलेंस शीट में किस में ऐड कर देते हो? प्रॉफिट है तो कैपिटल, और अगर लॉस है तो कैपिटल में से माइनस कर. याद है आपको? हमने बैलेंस शीट स्ट्रक्चर में बताया था वो. तो अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड कर देते हो, लॉस होता है तो कैपिटल से माइनस कर देते हो. तो बेसिकली इनकम एक्सपेंसेस जितने हुए थे आपके लास्ट ईयर में वो सब अभी बंद हो चुके हैं. प्रॉफिट लॉस पता चल गया है और वो प्रॉफिट लॉस आपका कैपिटल में ऐड हो चुका है. तो जब भी आपका नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होने वाला है, नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू होने वाला है, तब एक्सपेंस इनकम कभी दिखने वाले नहीं है. यू विल नेवर फाइंड एनी एक्सपेंस इनकम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिकॉज एक्सपेंस एंड इनकम का लाइफ ही 1 ईयर होता है. तो एक साल खत्म हुआ, एक्सपेंस इनकम बंद हो गया है, कैपिटल में चला गया है, उनका लाइफ इज ओवर. इज दैट क्लियर? सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? What are we left with at the end of the year 1? We are left with only these two items, assets and liabilities.
We are left with only these two items, assets and liabilities. अभी assets and liabilities तो carry forward होते हैं. Carry forward का मतलब उनका लाइफ खाली 1 year होता है कि 1 year से ज्यादा होता है? Assets and liabilities का लाइफ ज्यादा होता है. 1 year से ज्यादा होता है. एटलीस्ट 1 year तो होगा ही इन केस ऑफ करंट एसेट आगे जाके. बट मेजोरिटी काफी सारे एसेट ऐसे भी है जिनका लाइफ 1 year से ज्यादा है. तो ईयर खत्म होने के बाद भी कंटिन्यू होते हैं. एसेट एंड लायबिलिटी विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर एज वेल. आर यू गेटिंग दिस मीनिंग? इनकम एक्सपेंस कभी नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ 1 year थी, खत्म हो चुके, यूज हो गए, खत्म हो गया, प्रॉफिट लॉस मिल गया, चला गया. फर्स्ट ईयर ओवर. सेकेंड ईयर में कंटिन्यू क्या होंगे? कंटिन्यू सिर्फ एसेट और लायबिलिटी होंगे क्योंकि देयर लाइफ वाज मोर देन अ ईयर. ओके, more than the current financial year, so it went to the next year. Now ये जो ओपनिंग एंट्री है, इससे पहले आप लोग लर्न कर लो एक क्लोजिंग एंट्री. व्हाट इज दिस क्लोजिंग एंट्री? ये ओपनिंग एंट्री मैंने आपको बताया कब पास करनी है? फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर. सेकेंड ईयर से फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर पे करनी है. तो सपोज हम लोग प्रीवियस ईयर पे थे, हम लोग फर्स्ट ईयर में थे, तो फर्स्ट ईयर कौन सा होगा इस बिजनेस के लिए? 1 April 12 को सेकेंड ईयर स्टार्ट हो रहा है इसका, समझो. तो फर्स्ट ईयर होगा इसका April 2011 to 31st March 2012. हाँ, 11-12 विल बी द फर्स्ट ईयर. 1 April 11 से लेके 31st March 12 होगा. दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ द, आई एम अज्यूमिंग इट इज द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस. ओके, तो फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस के एंड में 31st March 12 के दिन पे आप लोग बैलेंस शीट बनाओगे, देख लोगे अपने वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. ठीक है. नाउ इसके लिए आप एक थ्योरी के लिए एक एंट्री पास करते हो जिसको कहते हैं क्लोजिंग एंट्री. क्लोजिंग एंट्री का मतलब क्या होता है? आप ऐसे बताते हो कि 31st March 12 को बिजनेस बंद हो रहा है, लायबिलिटी 0 हो रही है, एसेट 0 हो रहे हैं और बिजनेस 0 हो रहा है, खत्म हो रहा है 31st March 12 को. ठीक है, फर्स्ट ईयर खत्म हुआ ना, फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, बिजनेस बंद हो गया, लायबिलिटी 0, एसेट 0, बिजनेस 0, बिजनेस बंद. एंड वेरी नेक्स्ट डे वापस ओपन हो रहा है, तो वापस एसेट्स आर कमिंग इन, वापस लायबिलिटीज आर इंक्रीजिंग एंड वापस बिजनेस स्टार्ट हो रहा है. प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता. प्रैक्टिकली कोई बंदा अपना दुकान, शटर, फैक्ट्री बंद करके नहीं चला जाता ईयर एंड पे, उसका काम चालू है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? थियोरिटिकली in the books of accounts, when the first year is over, you show it like this. What do you show? You show as if your liabilities are closed, your assets are closed, business is closed, just for theory. And once the next year begins, very next day, 24 घंटे बाद, 31st March 12 से एक दिन बाद 1/4/12 को, we will show that the business is again getting back together. Okay, business is again starting with the assets, same assets which was left in the last year ka end, same liabilities are increasing, assets are increasing and business will start. Practically business बंद नहीं हो रहा है. ऐसा मत सोचना कि एक साल में बिजनेस बंद करोगे, नेक्स्ट डे वापस चालू करोगे. नो 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 नो, activities are going as it is, no problem at all. Just for theory's sake we are doing this entry. Is this point clear? Now what we will do at the end of the year? What do you mean by closing the assets and closing the liabilities? So think and tell me, जब ओनर ने एसेट लाया था बिजनेस में, याद है आपने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की एंट्री की है, ओनर इंट्रोड्यूस्ड एसेट्स इन बिजनेस. तो समझो ओनर ने कैश लाया, मशीन लाया, फर्नीचर लाया, तो व्हाट एंट्री वी यूज्ड टू पास? जब बिजनेस स्टार्ट होता था, याद है, वी यूज्ड टू पास दिस एंट्री, कैश, मशीन, 50,000 मशीन आया, 30 फर्नीचर आया, 20 टोटल कैपिटल 1 लाख. ऑल ऑफ यू रिमेंबर दिस एंट्री? ये बिजनेस स्टार्ट हुआ तभी का एंट्री है. फिर एक साल हो गया, फिर समझो यही एसेट और लायबिलिटी है, लेकिन मुझे बंद करना है थियोरिटिकली, मुझे बंद करना है थियोरिटिकली. तो मैं क्या करूंगा? मैं पूरा उल्टा एंट्री कर दूंगा, मैं पूरा उल्टा एंट्री कर दूंगा. व्हाट इज द उल्टा ऑफ दिस? व्हाट इज द उल्टा ऑफ दिस?
आई विल डू कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो क्रेडिट किया ना उसको डेबिट कर दूंगा, To cash, to टू कैश to टू furniture. मशीन मशीनरी टू टू फर्नीचर। फर्नीचर। अभी इसको आप अगर रूल्स वगैरह में डाल के देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि भैया ये क्या हो गया, बिजनेस Furniture बंद हो बाहर। रहा है। हाँ, फर्नीचर गोइंग आउट, मशीन गोइंग आउट, कैश गोइंग आउट, ओनर इज द रिसीवर, कैपिटल डेबिट। आर यू गेटिंग दैट? ऐसा लगेगा कि बिजनेस बंद हो रहा है, ओनर पैसा लेके चला गया, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा है, बिजनेस चालू ही है। खाली थियोरी के लिए हम एक फॉर्मेलिटी से की एंट्री करते हैं और कुछ काम नहीं है इसका, ठीक है? तो ड्राइंग लिख सकते हैं कैपिटल के बदले। सॉरी, व्हाई वी विल ड्राइंग्स ही है वो। ड्राइंग्स क्या करता है, कैपिटल को कम करता है ना। तो ड्राइंग्स के जगह आप रिटर्न कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स लिखूंगा तो ड्राइंग्स भी बंद होकर कैपिटल में ही जाने वाला है, आगे पता चलेगा आपको। ड्राइंग्स ऑल्सो गेट शट डाउन एंड गोस टू कैपिटल ओनली। तो कैपिटल कम ही हो रहा है आइदर वे, ड्राइंग या फिर कैपिटल, कुछ भी यूज करो आप। गॉट इट? सो इधर मैं क्या कर रहा हूं, आई एम शोइंग एज इफ द मेन बिजनेस इज शटिंग डाउन। इट इज नॉट शटिंग, एक्चुअली थियोरी में बता रहा हूं। तो मैं उल्टा एंट्री कर दूंगा, इसको कहते हैं क्लोजिंग एंट्री, इसको कहते हैं क्लोजिंग एंट्री। ये कब पास होती है क्लोजिंग एंट्री? ईयर के एंड पे, लास्ट डेट ऑफ द ईयर। लास्ट डेट ऑफ द ईयर ये एंट्री करोगे आप, ऐसे बताओगे बिजनेस बंद हो गया, वेरी नेक्स्ट डे, दैट इज ओपनिंग डेट ऑफ नेक्स्ट ईयर, आप वापस एक ओपनिंग एंट्री करोगे, जो आपको अभी प्रॉब्लम में दिखाई दे रही है। ओपनिंग एंट्री क्या होगी? ओपनिंग एंट्री बहुत सिंपल है, ये क्लोज किया हुआ आइटम्स है ना, इसी को वापस लाना है बिजनेस में, तो उल्टा करो वापस। व्हाट विल बी द उल्टा ऑफ दिस? Cash account debit. कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल, कैश, मशीनरी, फर्नीचर टू कैपिटल। तो मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, वापस बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, वापस ये कैपिटल, मशीनरी, कैश बिजनेस में आ गया। इसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। अभी अगर एकदम ध्यान से आप अगर देखोगे ओपनिंग एंट्री को, तो ये एकदम स्टार्टिंग वाले एंट्री जैसी ही है जो हमने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में की थी, याद है? एसेट्स आर बिजनेस, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड लायबिलिटी कैपिटल, ओनर इज द गिवर, या फिर लोन है तो लोन वाला इज द गिवर। सो व्हाट इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ द ओपनिंग एंट्री? इफ यू लुक एट इट वेरी केयरफुली, योर जनरल फॉर्मेट ऑफ द ओपनिंग एंट्री इज assets account debit to liabilities account to capital account. Am I right? ओपनिंग एंट्री का फॉर्मेट क्या लिखा मैंने? एसेट्स अकाउंट डेबिट, मतलब एसेट्स लाया बुक्स में, एसेट्स बढ़ गया। लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटीज बुक्स में आता है तो बढ़ जाता है, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट। एंड टू कैपिटल, कैपिटल भी बुक्स में आ गया, कैपिटल भी लायबिलिटी एक तरह का इंटरनल बढ़ गया। एसेट्स एंड लायबिलिटी। एक्सपेंस इनकम की भी आगे हम लोग लर्न करेंगे कैसे करनी है, वाया पीएनएल एंड कैपिटल एंड ऑल। फिलहाल आपको ये क्लोजिंग एंट्री खाली एसेट्स और लायबिलिटीज की है। तो क्लोजिंग एंट्री भी अभी नहीं है, क्लोजिंग एंट्री भी आपको लास्ट चैप्टर में है, फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में है। अभी फिलहाल आपको सिर्फ ओपनिंग एंट्री है जर्नल में। तो ओपनिंग एंट्री का फॉर्मेट क्या है पहले समझ आया? क्लोज, क्लोज मतलब एसेट लायबिलिटी बंद किया, और ओपन मतलब एसेट लायबिलिटी ओपन करके लेके आया, वापस लेके आया बिजनेस में। So what is the general format of opening entry? What is the general format of opening entry? It is what? Assets account debit to liabilities account to capital account. तो आप asset आया business में, increases debit, liabilities increases credit, capital increases credit. Is this part clear? प्रैक्टिकली वही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, थियोरी के लिए हम लोग खाली क्लोज करके ओपन करके दिखा रहे हैं। नेट इफेक्ट कुछ नहीं हुआ, नेट इफेक्ट नलिफाइड, जीरो नेट इफेक्ट, कुछ फर्क नहीं पड़ा ये एंट्री से। आपको कंफर्टेबल ऑल ऑफ यू? लेकिन आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी। कब करनी पड़ेगी? हर महीने करनी है कि एवरी ईयर के बिगिनिंग में करनी है? Every year.
एवरी ईयर के बिगिनिंग में करनी है। अच्छा, फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में भी करनी है कि सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स करनी है? second year सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स करनी है, सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स करनी है। और किस किस चीज के लिए ये ओपनिंग एंट्री आएगी? कौन से आइटम्स के लिए ओपनिंग एंट्री आएगी? सिर्फ और सिर्फ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और आपको क्वेश्चन में कब पता चलेगा ये एंट्री करनी है कि नहीं करनी है? What is the biggest hint given to you in the question? there's a separate thing Balance. written about saying Balances. about asset and Yes. Each account is given. Balances of assets and liabilities will be given to you on top. List of those assets and liabilities will be given on top. I'll give you from some exam. अब तक के कोई प्रॉब्लम में नहीं था, आपको पता होगा। लेकिन अब आप देखो क्वेश्चन 21, क्वेश्चन 21 में हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें करना है आपको ओपनिंग एंट्री। यस, ऊपर देखो क्वेश्चन 20 में करना है, क्वेश्चन 20 में ओपनिंग एंट्री करना है। अरे बोलो। यस 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 करना है। फिर मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 33 में करना है। क्वेश्चन 33 में सॉरी, क्वेश्चन 33 में करना है। Yes. क्वेश्चन 34 में करना है। यस 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 क्वेश्चन 35 में भी करना है। क्वेश्चन 32 में कर रहा है। क्वेश्चन 32 में ओपनिंग एंट्री करनी है। नहीं. नहीं करनी। क्वेश्चन 31 में ऐसा करनी है। कुछ नहीं दी 31 में नहीं No. करनी। नहीं Are you करनी able to recognize कौन से सम में ओपनिंग एंट्री आएगा? You'll be given the list of assets and liabilities specifically. Comfortable? So I'm doing question number 21. Now let's begin with that. Question 21 पे जाते हैं वापस। Sir, every Yeah. time it would be 1st of April. Yeah, mostly it will be 1st of April because 95-97% of the business they follow April to March का financial year. 1st April to 31st March. It may be a different date as well. 1st May, 1st June. Business का financial year अलग भी हो सकता है। तो डेट का बॉदर नहीं करना है, जो दिया है वो फर्स्ट डेट ही हो गया ऑटोमेटिकली ईयर का। उसी दिन वो लोग देंगे आपको लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एवरी मंथ के बिगिनिंग में देंगे भी नहीं। मतलब इन शॉर्ट आपको अगर प्रॉब्लम में लिस्ट दिख गई तो करना ही है वो एंट्री, करेक्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ 1st May, 1st April, 1st June। 1st May है तो बिजनेस का फाइनेंशियल इज फ्रॉम May to April। 1st June है तो इट इज फ्रॉम June to May। दैट वे 99% 95% ऑफ द बिजनेस दे डू April to March। सो April to March ही दिखेगा आपको, 1st April को ही दिखेगा ये। ओके, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट ये एंट्री तो करनी है। बैलेंस दिख गया तो करना ही है, ठीक है। एंट्री देखना अभी ध्यान से मैं कर रहा हूं, आपको खाली पता होना चाहिए इसमें से एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है। सबको पता है? मुझे बताओ जरा सोच के, व्हाट इज कैश एट बैंक, Asset. व्हाट इज मशीनरी, Asset. asset व्हाट इज फर्नीचर, Asset. asset is computer and printer, Assets. asset. What is sundry debtor, asset what is sundry creditor। liability मतलब ये बोल रहे हैं कि पहला साल जब खत्म हुआ तब बिजनेस के एंड में इतने एसेट और लायबिलिटी बच गए थे जो हमने बंद किए वाया क्लोजिंग एंट्री इन द प्रीवियस ईयर, और अब हम शुरू कर रहे हैं वाया ओपनिंग एंट्री इन द नेक्स्ट ईयर। तो 1st April 2012, 1st April 2012 I'll pass this entry। ध्यान से देखते जाना। कैश एट बैंक, खाली बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो उसके लिए आप। कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट्स डेबिट करते जाना। कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट 2,10,000। देन मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट that is 2 lakhs। Then furniture account debit, that is 50,000 rupees। Then we have computer and printer account debit, computer and printer account debit, that is 1 lakh। हाँ, इसके साथ कोई एंट्री क्लब नहीं कर सकते, मतलब नेक्स्ट ही एंट्री में नहीं 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 नहीं, ओपनिंग एंट्री के साथ कभी कुछ क्लब नहीं करना है। ओपनिंग एंट्री के साथ कभी कुछ क्लब नहीं करना है, ओके, बिकॉज इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। वो फॉर्मेलिटी से हमने क्लोज करके ओपन करके नलिफाई कर दिया उसका इफेक्ट एसेट लायबिलिटी का। खाली हमने फॉर्मेलिटी से बताया कि बंद हुआ ओपन हुआ, दैट्स इट। ट्रांजैक्शंस क्लब करो, सेम डे हो रहे हैं ना, तो ओपनिंग एंट्री के साथ कभी कुछ क्लब नहीं करने का, कभी भी नहीं, सब अलग अलग। So computer and printer debit, sundry debtors account debit,
सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट मतलब डेटर्स से इतना पैसा लेना बाकी है एट द ईयर एंड, प्रीवियस ईयर के एंड में इतना पैसा लेना बाकी है, इतने सारे बाकी तो एसेट्स लाइबिलिटीज हैं हमारे पास, एंड क्रेडिटर्स है ना वो लाइबिलिटी है, तो आई विल क्रेडिट इट. सो टू क्रेडिटर्स अकाउंट दैट इज 40,000. अब आप चेक करोगे ना ये टैली नहीं हो रहा है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट नहीं हो रहा है, गैप आ रहा है. व्हाट इज दिस गैप? Capital, assets minus liability. कैपिटल एसेट माइनस लाइबिलिटी, याद आ रहा है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी एसेट, ये मैंने जनरल फॉर्मेट भी दिया आपको, देखो क्या है. व्हाट इज द फॉर्मेट? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट. कैन यू ऑल सी दैट? तो कैपिटल तो होगा ही ओपनिंग एंट्री में, और वही ढूंढने के लिए आपका काम है मेन ओपनिंग एंट्री. कैपिटल कितना है शुरुआत में बिजनेस का? गॉट इट? तो शुरू में बिजनेस का कैपिटल कितना था, मतलब लास्ट ईयर के एंड में कितना था, तो टू कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग अमाउंट है. It will be what? Assets minus liability. So this is 410, 460, 560 minus 40. 5,20,000 आना चाहिए. Please check. 5,20,000 should be your capital. All of you got that? Is this business starting today So or you it is have continuous? mentioned about sundry debtors. So it will be 5,60,000. 70. Oh, sorry. Five Amount lakhs, क्या लिखा मैंने? Okay. 50,000. Okay. Yeah. The sundry debtors are Capital will be 50,000. 5,70,000. 5,70,000. Sorry. 5,70,000. So why do we write sundry beside the debtor and not just the debtor? Sundry debtors का मतलब हो जाता है जनरल डेटर्स, which is used, this term is mainly used for goods. Goods के डेटर को we call sundry debtors. Okay? तो बाकी कोई डेटर होते हैं ना, तो we specify them, डेटर फॉर लोन या डेटर फॉर प्रीपेड एक्सपेंस. Sundry debtor is a general way of saying that they are for goods. Okay? General debtors. Sundry creditor for goods, sundry debtor for goods. Okay? समझा ये पार्ट? ओपनिंग एंट्री क्लियर है? अच्छा, ये बिजनेस आज स्टार्ट हो रहा है कि कंटिन्यूएशन की एंट्री है? कंटिन्यूएशन की एंट्री. ओके, कब करनी है? फर्स्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर. एक ही बार होगी साल के बिगिनिंग में. ठीक है? फॉर्मेट हमेशा सेम होगा, एसेट टू लायबिलिटी टू कैपिटल. कैपिटल कैसे ढूंढा? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. ओके, नरेशन लिख देना. बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटीज. बीइंग ओपनिंग entry past for assets and liabilities. ठीक है? Being opening entry past for assets and liabilities. That is on 1/4/12. बस एक बार ये एंट्री कर दी, बाकी का प्रॉब्लम स्ट्रक्चर इज डिट्टो सिमिलर. So you can proceed with the next transaction onwards. 1 अप्रैल को एक और ट्रांजैक्शन हो रहा है, पढ़ो. Check received from Mahesh 10,000 and the same was immediately deposited in the Bank of Maharashtra. महेश से चेक आया और इमीडिएटली बैंक ऑफ महाराष्ट्र में डिपॉजिट कर दिया. बताओ क्या एंट्री होगा आपका? Bank account बैंक ऑफ महाराष्ट्र Account अकाउंट debit डेबिट to टू Mahesh महेश अकाउंट. बैंक ऑफ महाराष्ट्र टू महेश. महेश कौन होगा? महेश वुड हैव बीन आवर डेटर, राइट? उससे पैसा आ रहा है अपने को. हेलो निशांत पारेख, बैंक में डाल रहे हैं डायरेक्टली पैसा और महेश से पैसा आ रहा है. ओके, सो एंट्री क्या बनेगा आपका? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक इज द रिसीवर, टू महेश अकाउंट. तो बैंक टू महेश लिखो या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र टू महेश, एब्सोल्युटली फाइन. तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट, बैंक या बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक ही है, टू महेश अकाउंट. महेश अपना डेटर होगा, ये डेटर्स के अंदर पड़ा होगा. ओके, so I'm using Mahesh account. This is how much? 10,000 rupees. Bank of Maharashtra to Mahesh, that is 10,000 being. Sir, if Mahesh would have paid us in cash, then it would have been two separate. Cash to Mahesh. No, but if it would have been cash received from Mahesh and the same is immediately deposited in
Bank of Maharashtra. then also bank to Mahesh. Same is immediately deposited. Immediately किया है ना, मतलब bank is still the receiver and Mahesh is the giver. Okay. Correct? अगर सेम डे आपने डिपॉजिट कर लिया तो कैश आया और गया, चला गया सीधा बैंक तो में, फिर 2 एंट्रीज हो गई ना. क्लब हो गया ना वो, कैश आया गया नलिफाई हो गया, डायरेक्टली कैश बैंक में Only गया. check received from Mahesh. Only check received from Mahesh, still it is bank to Mahesh. So if it is check received from Mahesh but deposited on some other day, Then it will not be bank to Mahesh. Then it will be cash bank to to Mahesh. cash. Or cash. Right now it will be cash to Mahesh. Okay. And then when we deposit that check in the bank, that time bank to cash. Because right now you will treat that check as cash. वो भी आएगा आगे. कोई और डे पे आप डिपॉजिट कर रहे हो, फ्यूचर डेट पे, so you treat that check like cash, okay? And then when you deposit But that, sir, अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ऐसा ही है, पर उसमें ना नेक्स्ट एंट्री में ही दिया. अभी सपोज मैंने 2-3 दिन के बाद किया और उसके बीच में 2-3 एंट्री आ गई और उसमें मैंने बैंक टू महेश सपोज लिख दिया. तो ये सम है ना, पूरा चेक का ही स्टोरी पूरा क्लियर करेगा, देखते जाओ, मैं बता रहा हूँ. ऑल एवरीथिंग आई एम एक्सप्लेनिंग, देखते जाओ. बैंक ऑफ महाराष्ट्र टू महेश किया आपने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र टू महेश, क्यों? क्योंकि चेक आया है और सेम डे डिपॉजिट कर लिया है बैंक में, ओके? डायरेक्टली चेक आया और बैंक में गया. तो बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम महेश बाय चेक एंड डिपॉजिटेड ओके. नाउ नेक्स्ट वाला पढ़ो, सिक्स्थ वाला. What is happening in the sixth one? The check received on 4th April deposited. One more entry in the middle. Oh, sorry, fourth को है, sorry. Fourth को क्या हो रहा है? Check received from Sujit 20,000. अभी नॉर्मली आपको अगर चेक रिसीव दिया है, कुछ आगे पीछे नहीं दिया है, तो आपका एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू सुजीत अकाउंट, बराबर है? अभी यहाँ पे पढ़ो क्या दिया हुआ है. वेरी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आपको दिया हुआ है कि चेक रिसीव्ड ऑन 4th was deposited into Bank of Maharashtra. मिला? Check received on 4th April was deposited into Bank of Maharashtra. मुझे सोच के बताओ, क्या ये चेक सेम डे बैंक में गया है कि नेक्स्ट डे गया है या 2-3 दिन बाद गया है? 2 days. 2-3 दिन बाद, आफ्टर 2 days गया है, ठीक है? तो ऐसा कभी भी होता है, मतलब क्या होता है? You are receiving the check on one day, but you are depositing it on some other day into the bank. So in such a situation, what are you supposed to do? When you receive the check today, Bansi Joshi, when you receive the check today, you won't treat it as bank. Is that clear? You won't treat it as bank. You will treat that check as cash. But then when you deposit that check inside the bank, that time you will pass an entry bank to cash. As good as you are putting the money. I'll give you a simple example. आज मुझे 10,000 rupees का चेक मिला बंसी से. I received a check of 10,000 from Bansi and I deposited into bank immediately. वो चेक आया और immediately बैंक में डाला, तो मेरा एंट्री क्या होगा? बैंक टू बंसी. बैंक इज द रिसीवर, बंसी इज द गिवर. बट आज 29th August, I got a check from Bansi on 29th August, but I deposited it on 31st August. So right now, बैंक टू बंसी नहीं करूंगा मैं. 29th August को मैं क्या एंट्री करूंगा? कैश टू बंसी. I will treat that check like cash. Okay? तो कैश टू बंसी करूंगा. फिर 31st August को क्या एंट्री करूंगा? जब मैं वो चेक डाल रहा हूँ बैंक टू कैश. I'll treat that check like cash only. I'll put that money inside the bank. Bank is the receiver, cash is going out. ये बात समझ में आई? अब एक और चीज जो हम बहुत बार कर चुके हैं पहले सम में, सिर्फ ऐसा दिया है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम बंसी, आगे कुछ नहीं दिया है. कब डिपॉजिट किया, आज किया, कल किया, परसों किया, कुछ नहीं पता है. तो फिर क्या अज्यूम करना है? बैंक टू बंसी आएगा. अज्यूम करने का कि सेम डे डिपॉजिट हो गया है, अज्यूम करने का कि सेम डे डिपॉजिट हो चुका है. बैंक टू बंसी. इज दैट क्लियर? All of you got it?
तो यहाँ पर लेकिन देखो, अगर हाँ लेकिन अगर नीचे दिया कि 4th अप्रैल का 6 अप्रैल को डिपॉजिट किया तो 4th अप्रैल का कौन सा आएगा? आई एम नॉट एबल टू लिसन, एकदम क्रैक हो रहा है तुम्हारा वॉइस. व्हाट आर यू आस्किंग? कैन जस्ट टाइप इफ पॉसिबल. मोक्ष, did anyone get what did Moksh ask? Please tell. मोक्ष ने क्या पूछा, किसी को सुनाई दिया क्लियर तो बताओ मुझे. अगर 4th अप्रैल को अगर समझो अगर वो दिया चेक रिसीव हुआ आपको, तो हाँ, अगर 6 अप्रैल को नीचे दिया कि 4th अप्रैल का जो चेक है क्या हाँ तो अभी मैं कर रहा हूँ ना, वही तो कर रहा हूँ यार 4th अप्रैल में. तो अभी क्या एंट्री आएगी बताओ मुझे. 4th अप्रैल को क्या एंट्री आएगी, दिख रहा है ना नीचे 6th अप्रैल को डिपॉजिट किया हुआ है. Cash to Sujit. 4th अप्रैल Bank को क्या account करोगे? debit to Sujit. Cash account debit to Sujit. You will not write bank to Sujit. You will But write. you said कि we assume it to be deposited in the bank on the same day only. अगर आगे पीछे कुछ राम कहानी नहीं है तो इधर दिया ही नहीं है ना. इधर दिया है 6th अप्रैल को, देखो पढ़ो क्या दिया हुआ है. अच्छा ऐसे. हाँ 6th अप्रैल को दिया हुआ है. तो आपको कभी भी क्वेश्चन में चेक दिख जाए ना, चेक, तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा एंड तक. महीने के एंड तक कभी भी वो चेक डिपॉजिट हो सकता है. ओके, तो whenever you come across any check, you see the next 5, 6, 10 transaction till some end. ओके, कौन से दिन पे डिपॉजिट हुआ है, क्या कोई और डे पे डिपॉजिट हुआ तो नहीं है. अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो अभी आप बैंक लिखो. लेकिन पीछे कहीं पर भी दिख गया आपको सम में कि ये चेक किसी और दिन पे डिपॉजिट हो रहा है, तो अभी आप बैंक मत लिखना, अभी आप कैश लिखोगे. राइट नाउ यू विल ट्रीट दैट चेक एज कैश. ओके, तो पूरा सम आपको गो थ्रू करना पड़ेगा. अभी तक ये टेंशन नहीं आ रही थी, अभी के बाद आएगी. ऐसे एग्जांपल्स भी आएंगे आपको समझना, और एग्जाम में भी पूछते हैं आपको ऐसा. ठीक है, तो चेक समझा मैंने क्या बोला. कुछ राम कहानी नहीं है पीछे तो फिर बैंक, लेकिन यहाँ पे दिया है सम अदर. तो राइट नाउ यू ट्रीट दैट चेक एज कैश. तो आपका एंट्री होगा कैश टू सुजीत 20,000. कैश टू सुजीत 20,000 रुपीज. ओके, बीइंग check received from Sujit. Being check received from Sujit. Okay, that was on 4th. Do we have to mention not deposited in the narration? That's okay, you can do that. That's absolutely fine. Okay, करो तो भी चलेगा, नहीं करो तो भी वांदा नहीं. नेक्स्ट वन, 6th अप्रैल को क्या हो रहा है पढ़ो. 6th April, the check received on 4th April is deposited into Bank of Maharashtra. आज मैंने वो चेक बैंक में डाला जो चेक 4th को मिला था, तो अब मैं क्या एंट्री करूंगा आज? Bank of Maharashtra account debit to cash. बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. क्योंकि मैंने वो चेक को कैश ट्रीट किया हुआ है, याद है आपको, अभी अभी मैंने कैश लिखा उस चेक के लिए, तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में वो चेक कैश के जैसा दिख रहा है. तो अब मैं वो चेक डाल रहा हूं बैंक में. वो स्लिप भरते हो ना तुम लोग, आधा डिपॉजिट स्लिप भर के फट के तुमको मिलता है, आधा वहां पे देते हो पिन लगा के चेक को. ये डिपॉजिट करने का एंट्री है. तो क्या होगा, ये चेक डिपॉजिट इज एज गुड एज कैश डिपॉजिट फॉर मी, बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट में वो कैश दिख रहा है. तो एंट्री होगा मेरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अमाउंट कितना होगा? 20,000. What should be the amount? 20,000. 20,000 rupees. 20,000 rupees. Is this clear? 20,000 rupees. Okay. Being check deposited with Bank of Maharashtra. Being check deposited with Bank of Maharashtra. तो हमने अभी तक दो चीजें सीख ली चेक के बारे में. नंबर वन, if you receive a check on the same day and you put it inside bank, you deposit in the bank, what will be the entry? If you receive a check on the same day and you deposit in the bank, Bank to the debtor. bank to party, Bank to right?
बैंक टू पार्टी. To the party. हाँ, अभी if you receive a check on the same day but you don't deposit on the same day, you deposit after some days, then right Bank to now cash. And Cash. the day on which you receive सुजीत, but दो parts में हो रहा है, cash gets nullified, बराबर. ये दो पार्ट्स में हो रहा है ना, पहले चेक आया बाद में डिपॉजिट किया, तो इसमें एंट्री भी करनी पड़ेगी. ठीक है. देन वी गो टू द नेक्स्ट वन. Read now what is happening in the next one. The check deposited on 6th April is dishonored. Okay, अभी dishonor हो गया. What do you mean by dishonor of a check? You know this? Dishonor का मतलब bounce. Check got bounced. Check got bounced. Mistake in the check. Mistake in the check. Amount wrong. Figures wrong. Signature में mistake. Cancellation. the party's account cannot be. Sorry. Balance Balance in in the other the account is insufficient. There are various multiple reasons due to which the check can get bounced, right? So dishonor का मतलब होता है bounce. अभी जब भी कोई चेक बाउंस हो जाता है ना, तो क्या करने का, सुनो. चेक का बाउंस होने का मतलब क्या हो गया, जो ये चेक आया था ना सुजीत से, ये इनवैलिड चेक है. ये इनवैलिड चेक है, ये बाउंस हो चुका है. ओके, बाउंस होने का मतलब ये पेमेंट कैंसिल हो गई है बैंक के थ्रू. तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एंट्री में हमें ये पूरा एंट्री उल्टा करना पड़ेगा. ये दोनों एंट्री उल्टा करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये एंट्री है ही नहीं अभी बुक्स में, ऐसा दिखाना है. तो कैंसिल करके उधर चेक छक करके नहीं आने का. यू कैन नॉट डू फिजिकल कैंसिलेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. ओके, तो पता चला पेंसिल पेन से कैंसिल करके आ गए, ऐसा नहीं कर सकते. हाउ टू कैंसिल एन एंट्री इन अकाउंट्स? हाउ डू यू कैंसिल एन एंट्री? जो डेबिट है उसको क्रेडिट दो और जो क्रेडिट है उसको डेबिट दे दो. So automatically account debit to Bank of Maharashtra account. Very good, very good, very good. See, I'll come to that part now. How to pass this cancel का entry. पहले तो आपको dishonor का मतलब समझ आया? Did you understand dishonor का मतलब? Dishonor मतलब क्या? What do you mean by dishonor? Bounce. Bounce, cancelled. Cancel मतलब payment nullified. तो सुजीत से कोई पैसा आया नहीं है और वो चेक बैंक में गया, लेकिन वो कोई एंट्री वैलिड नहीं है क्योंकि सबका नलिफाई हो चुका है, इफेक्ट जीरो हो चुका है. राइट, सबका इफेक्ट जीरो हो चुका है. इज दैट क्लियर? नाउ ये दोनों एंट्री को उल्टा करना है. देखो, डिसऑनर एंट्री इज प्योरली मैकेनिकल. ओके, ओरिजिनल ट्रांजैक्शन को हम लोग कैंसिल कर रहे हैं. तो ध्यान से देखना मैं कैसे करूंगा. यहाँ पे बनेगी एंट्री सुजीत टू कैश. पहला एंट्री क्या था, कैश टू सुजीत, उसको उल्टा कर रहा हूं, सुजीत टू कैश. एंड दूसरा एंट्री क्या था, बैंक टू कैश, तो उसका हो जाएगा कैश टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र. बराबर है. अब ये दोनों एंट्री उल्टे हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कैश ऑलरेडी नलिफाइड था, हमने ऊपर देखा था, तो वापस कैश कैश लिखाने की जरूरत नहीं है. तो आपका फाइनल एंट्री क्या बनेगा, सुजीत टू बैंक. सुजीत टू बैंक. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? कैश ऑलरेडी नलिफाई हो चुका था, ऊपर ही मैंने बताया था आपको, दिख रहा है. कैश डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो चुका है. तो बचा क्या था यहाँ पे, बैंक और सुजीत बचा था. मैं उसको उल्टा कर रहा हूं, तो सुजीत टू बैंक. सुजीत टू बैंक इज माय डिसऑनर एंट्री. सुजीत टू बैंक इज माय डिसऑनर एंट्री. कैश कैश नलिफाई हो चुका है क्योंकि बैंक में चेक डिपॉजिट हो चुका है. ओके, सिमिलरली अभी समझो ये वाला चेक डिसऑनर होता, महेश वाला चेक. महेश वाला चेक डिसऑनर होता तो क्या एंट्री करते हैं? महेश अकाउंट Mahesh to bank. महेश टू बैंक. महेश टू बैंक. वैसे ये सुजीत वाला हुआ है, सुजीत टू बैंक, क्योंकि कैश तो ऑलरेडी नलिफाई हो चुका है. वापस मत लिख देना कैश दो बारी डिसऑनर एंट्री. गॉट इट?
So just one entry for dishonor, that will be what? Sujit account debit. Sujit account debit to Bank of Maharashtra account. To Bank of Maharashtra account. How much? 20,000. So if you look at the three entries carefully, इधर narration लिख दो, being check received from Sujit dishonored. Being check received from Sujit dishonored. आप अभी ये तीनों एंट्रीज जब साथ में देखोगे तो आपको पता चलेगा इसका नेट इफेक्ट 0 है. 0 0 0 0. तीनों एंट्री का नेट इफेक्ट 0 है. देखो, कैश डेबिट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ, कैंसल आउट. सुजीत क्रेडिट, सुजीत डेबिट, कैंसल आउट. बैंक ऑफ महाराष्ट्र डेबिट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्रेडिट, कैंसल आउट. बैक टू 0. मतलब अभी वापस सुजीत से पैसा लेना है कि देना है? He has to pay us. Has to pay us because He has to pay us. He is our debtor. For how much? Receive from him. How much are we supposed to? 20,000. 20,000. 20,000 we are supposed to still receive from Sujit. Did you understand? 20,000 we are supposed to receive from Sujit. Back to 0 कर दिया. तो डिसऑनर का लॉजिक क्या है? डिसऑनर मतलब कैंसलेशन ऑफ ओरिजिनल चेक या जो भी बाउंस हो गया उसका एंट्री. सपोज आपने किसी को चेक दिया, मैंने राम को चेक दिया, समझो मैंने राम को चेक दिया 30,000 का, तो मैं क्या एंट्री करूंगा? राम टू बैंक 30,000. यू नो इट, राम इज द रिसीवर. चेक जा रहा है तो टू बैंक. आई गिव अ चेक टू राम. राम ने बैंक में डाला, उसको पता चला चेक बाउंस हो गया, सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है. राम ने मुझे बोला भैया आपका चेक बाउंस हो गया. What entry should I pass for this dishonor? Bank to Ram. Bank to Ram. Bank to Ram. 30,000. क्या किया मैंने? उल्टा कर दिया. राम टू बैंक का हो गया बैंक टू राम. समझ में आ रही है बात? मेरे को विदुषी से चेक आया. मेरे को विदुषी से चेक आया 5,000 रुपीज का. What entry should I pass? सारी इतना दिया है, चेक रिसीव फ्रॉम विदुषी. कुछ डिपॉजिट के बारे में कुछ नहीं दिया, तो क्या Cash to Vidush. डिपॉजिट के बारे में कुछ नहीं दिया. Bank to Vidush. Bank to Vidush. कुछ राम कहानी नहीं है तो बैंक ही लिखना है ना, नॉर्मल चेक. तो बैंक टू विदुषी 5,000 अज्यूम करना है, सेम डे डिपॉजिट हो गया है कि नहीं. अब ये चेक बाउंस हो गया, तो व्हाट एंट्री शुड आई पास? Vidushi to bank. विदुषी टू बैंक 5,000. इज दिस क्लियर? सिंपल सा एंट्री कर रहा हूं मैं, उल्टा कर रहा हूं खाली. अब एक और गम्मत देखो, यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड कर रहा हूं. यहाँ पे ध्यान से देखना सब लोग, ठीक है. मुझे विराली से चेक आया, 10,000 का इन फुल सेटलमेंट ऑफ 11,000. विराली से चेक आया 10,000 का इन फुल सेटलमेंट ऑफ 11,000. तो मैं क्या एंट्री करेगा? Bank account Bank debit. account debit. Discount allowed account Discount debit to allowed Virali account account. to Virali. ये सबको पता है. बैंक अकाउंट डेबिट 10, डिस्काउंट अलाउड 1, विराली 11. बराबर. लेकिन ये चेक बाउंस हो गया. दिस चेक गॉट बाउंस्ड. नाउ व्हाट? Virali account debit. Virali account Discount debit account to debit discount. to bank account. यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. विराली अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट टू बैंक अकाउंट. डिस्काउंट रिसीव्ड मत लिख देना. डिस्काउंट रिसीव तब आएगा जब वी पे एंड वी रिसीव डिस्काउंट. वी आर नॉट रिसीविंग एनी डिस्काउंट, वी आर जस्ट कैंसलिंग द ओरिजिनल डिस्काउंट. अब लॉजिकली सोचो ना, मैंने विराली को डिस्काउंट क्यों अलाउ किया था? क्योंकि विराली ने मुझे पैसे दिए थे चेक में. अगर पैसे ही अगर बाउंस हो गए, चेक ही बाउंस हो गया, तो क्या डिस्काउंट दे के रखूंगा? इतना हरिश्चंद्र हूं मैं, तो मैं डिस्काउंट भी क्या करूंगा? रिवर्स कर दूंगा. आई विल रिवर्स द डिस्काउंट. तो यहाँ पे मैंने क्या एंट्री किया? विराली अकाउंट डेबिट 10,000 टू डिस्काउंट 1 टू बैंक 10,000. इज दिस क्लियर? तो whenever there is dishonor entry में discount, so discount also will get reversed automatically. Another example, we paid, yeah. हाँ सर, अभी सपोज हमने गुड्स बेचे हैं और हमें मतलब हमने टाइम दिया है कि 3 days में हम लोग को वो अमाउंट देगा तो हम उसको कैश डिस्काउंट देंगे.
तो अभी उसने हम लोग को चेक दे दिया, फिर हमने डिस्काउंट भी दे दिया सेकेंड डे पर, और फिर वो चेक बाउंस हो गया, फिर उसने 2-3 दिन बाद दिया, तो तब भी डिस्काउंट देंगे? नहीं, एक बार बाउंस हो गया फिर खत्म, फिर नो डिस्काउंट, फिर तो पूरा पैसा वसूल लेने का। अभी यही एग्जांपल में विराली का चेक बाउंस हो गया ना, तो डिस्काउंट कैंसिल हो गया। अब वापस विराली से मुझे कितना लेना है पैसा बताओ, 10 लेना है कि 11? 11. अभी 11,000 लेना है ना, तो अब मैं कितना लूंगा विराली से? 11। अब विराली पैसे देने आएगी, मैं बोला अभी कोई का डिस्काउंट, अभी नो डिस्काउंट, अभी तो चेक बाउंस हो गया था, पहले मिलने वाला था, अभी बाउंस हो गया, अभी पूरा डिस्काउंट। अगर हम लोग बहुत दिल के अच्छे हैं, हम लोग अच्छे लोग हैं, हमें गुस्सा नहीं आता है, हमारे पास बहुत पैसा है, तो हम डिस्काउंट अलाउ कर भी सकते हैं, ऐसा भी एग्जांपल आएगा आपको। बट जनरली एक बार चेक बाउंस हो जाता है तो बाद में डिस्काउंट नहीं मिलता। इज दैट क्लियर? If this happens within the credit period, then we'll allow discount, no? Probably, yes. Probably. That depends between the relation of debtor and creditor. Okay? Generally एक बार बाउंस होने के बाद अलाउ नहीं किया जाता, ऐसा होता है ट्रेड्स में। अभी मैंने रुतवा को चेक दिया, मैंने रुतवा को चेक दिया है 4,000 का इन सेटलमेंट ऑफ 5,000. I gave a check to Rutwa of 4,000 in settlement of 5,000. Tell me, what entry should I pass? Rutwa account debit. Account debit Bank Rutwa to discount received to bank. Okay, देना था 5, दिया 4, तो 1 का discount. All of you understood this? This check got bounced. This check got bounced. What is a bounce का entry? Bank account, discount received account. Bank discount received to Rutwa. बैंक डिस्काउंट रिसीव टू रुतवा. डिस्काउंट रिसीव्ड को ही डेबिट करना, क्योंकि हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, डिट्टो वो ओरिजिनल एंट्री को नलिफाई कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं. ठीक है, तो डिस्काउंट मैंने पे किया इसलिए उसने मुझे डिस्काउंट दिया, अभी वो चेक बाउंस हो गया तो क्या डिस्काउंट, डिस्काउंट आल्सो विल गेट रिवर्स्ड. नाउ आई एम सपोज्ड टू पे टू रुतवा हाउ मच? आई एम सपोज्ड टू पे टू रुतवा 5,000 फुल अमाउंट. इज दिस क्लियर? फुल 5,000 मुझे देना पड़ेगा रुतवा को. ऑल ऑफ यू गॉट दैट? This is how the dishonor part works. Dishonor का concept बैठा दिमाग में? What do you mean by dishonor? Cancellation of original check का entry. और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है dishonor का, अगर आपने गौर किया होगा, यहाँ पे ध्यान से देखा होगा, every dishonor entry includes party's name. Every dishonor entry includes party's name. Dishonor entry में पार्टी का नाम होना 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 और होना ही चाहिए. ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि डिसऑनर एंट्री डजंट इन्वॉल्व पार्टीज नेम. ओके, नाउ आई विल टेल यू वन मोर एग्जांपल. लेट्स सी हु गेट्स दिस. आई परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम गोदरेज. आई परचेज फर्नीचर फ्रॉम गोदरेज फॉर अ चेक. मैंने फर्नीचर खरीदा और चेक दिया, गोदरेज से खरीदा, तो एंट्री क्या बनेगी? furniture account debit to bank. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक. मैंने फर्नीचर खरीदा और मैंने चेक दिया 20,000 का, बराबर है. गोदरेज से खरीदा फर्नीचर, चेक दे दिया, सेटल हो गया ट्रांजैक्शन. दिस चेक गॉट बाउंस्ड. व्हाट इज द एंट्री? Bank account debit Bank to Godrej. Bank to Godrej. बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर नहीं, Godrej. गोदरेज अकाउंट आएगा, पार्टीज नेम. हाँ, डिसऑनर एंट्री में पार्टी का नाम चाहिए. Why not furniture? What if I write bank to furniture? What does it indicate? Sir, he is not taking to receive. He's buying furniture with the help of a check. ये तो हो गया, buying furniture with the help of a check. But what if I have written? out of the business. हाँ, अगर आप बैंक टू फर्नीचर लिखोगे तो इट मीन्स इट इज सेल ऑफ फर्नीचर. बैंक टू फर्नीचर लिखोगे ना तो इट मीन्स इट इज सेल ऑफ फर्नीचर. क्या बेच रहे हो? क्या फर्नीचर वापस बेच रहे हो? नहीं, आपको अभी किसको पैसा देना बाकी है? गोदरेज को. तो गोदरेज को क्रेडिट करने का, बिकॉज और क्रेडिटर, इसको पैसा देना बाकी है. समझ में आई बात? फिर आप नया चेक फाड़ के गोदरेज को दोगे, नया चेक इश्यू करोगे, क्योंकि बाउंस हो गया था पहला वाला चेक, तो आपका एंट्री होगा गोदरेज टू बैंक.
आपका एंट्री होगा गोदरेज टू बैंक 20,000. इज दिस क्लियर? जब आप वापस गोदरेज को पैसा दोगे तब. कंफर्टेबल ऑल ऑफ यू? सो रिमेंबर दिस, गोदरेज ओके पार्टी का नाम होना जरूरी है, कंपलसरी है डिसऑनर के केस में. I'll take one more example, last example, then we'll move to the next entry. Tell me, we have sold goods. Suppose I have sold goods to Preet. I have sold goods to Preet for a check of 10,000. मैंने प्रीत को गुड्स बेचा for a check of 10,000. बताओ, what entry should I pass? Bank account debit to sales. To sales account. Bank account debit to sales account 10,000. ये सबको समझ में आ गया? मैंने गुड्स बेचा, चेक मिला. Okay. This check got bounced. This check got bounced. Preet account debit To bank. Can I write sales to bank? Can I write sales to sales to bank? होता ही sales to bank मतलब sales cancel हो गया. ऐसा नहीं हो रहा है कि वो गुड्स वापस आ रहे हैं. गुड्स वापस नहीं आ रहे हैं. अभी प्रीत से पैसा लेना बाकी है. तो मैं क्या एंट्री करूंगा इधर? प्रीत टू बैंक. प्रीत टू बैंक 10,000. इसका मतलब क्या है? प्रीत इज माय डेटर. इससे पैसा लेना बाकी है. अभी प्रीत का गलती था. जैसे यहाँ पे मेरा गलती था, मुझे गोदरेज को पैसा देना बाकी है. अभी यहाँ पे प्रीत का गलती था, मुझे प्रीत से लेना बाकी है. फिर 2-4 दिन बाद प्रीत ने मुझे नया चेक दिया, तो मैं क्या एंट्री करूंगा? बैंक टू प्रीत. मैं ये एंट्री कर दूंगा बैंक टू प्रीत. इज दिस क्लियर? बैंक टू प्रीत. ऑल ऑफ यू गेटिंग दैट? सो डिसऑनर मतलब कैंसलेशन ऑफ ओरिजिनल ट्रांजैक्शन, दैट्स फॉर श्योर. But dishonor should always involve party's name. Dishonor entry should always involve party's name. It will be bank to party or party to bank. One side will be bank, other side will be party always. In case of dishonor. When we give check to other party, so if we deposits on another date, then to our transaction will be same, no bank. Our transaction will be same only. ना अपना पैसा तो बैंक से ही जा रहा है. So when we issue, वो आज डिपॉजिट करे, कल करे कि 2 महीना बाद करे, अपने लिए तो पैसा बैंक से ही जा रहा है. Whenever we give a check, it will be always bank. When we receive a check, that time only you have to check. It is deposited on the same day or some other day. Got it? So हमने 3 आइटम सीखी है चेक की. नंबर 1, बताओ, if a check is received today and deposited on the same day, which account do you use? Cash to party name. No. Same day deposit. bank. सेम डे डिपॉजिट. आज चेक आया, सेम डे बैंक में डाल दिया. बैंक अकाउंट. बैंक टू पार्टी. नो, बैंक टू कैश नहीं, बैंक टू पार्टी. सेम डे डिपॉजिट. पहला वाला एंट्री पढ़ो, महेश वाला. ऑल ऑफ यू रीड महेश वाला एंट्री. चेक रिसीव फ्रॉम महेश एंड सेम डे डिपॉजिटेड इन द बैंक. व्हाट इज योर एंट्री? Bank to Mahesh. बैंक टू महेश. ओके. दूसरा चीज हमने सीखा, चेक रिसीव्ड टुडे बट डिपॉजिटेड ऑन सम अनदर डे. आज चेक आया, Bank to cash. आज कैश टू पार्टी. आज चेक आने का कैश टू पार्टी. Cash. आज चेक आया, उसका एंट्री कैश टू पार्टी बट डिपॉजिटेड ऑन सम अदर डे. सो अनदर डे व्हेन यू डिपॉजिट, व्हाट एंट्री यू पास? बैंक टू कैश. Bank to cash. All of you got that? Bank to cash. Third thing we learned is dishonor. Whenever there is dishonor, what do you do? उल्टा. ओरिजिनल एंट्री का उल्टा कर देने का. ठीक है? बट उल्टा करने में ध्यान क्या रखना है? पार्टी का नाम होना चाहिए. पार्टी का नाम हमेशा होना चाहिए. क्लियर? पार्टी का नाम होना ही चाहिए डिसऑनर एंट्री में. बैंक टू पार्टी या पार्टी टू बैंक. ओके. सो आगे और भी एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे. लेट्स कंटिन्यू विद द प्रॉब्लम नाउ. व्हाट इज हैपनिंग? रीड, चेक फर्दर. तो ये तो डिसऑनर हो गया. नेक्स्ट वाला पढ़ो. अभी क्या हो रहा है? 14th वन पढ़ो. 14th वन. Check received from Monali of 11,000 and the same is endorsed to Anita. Now this is what is called as endorsement. The last thing you need to learn about check. Okay, endorsement. The check received from Monali and the same was endorsed to Anita. This is on 14th. 14/4/12. अब एंडोर्समेंट का मतलब क्या है, समझो इसको. एंडोर्समेंट का मतलब होता है, मेरे पास आज चेक आया, ठीक है, और 1-2 दिन बाद या सेम डे मैंने किसी और को वही चेक फॉरवर्ड कर दिया.
एंडोर्समेंट बोलते हैं उसको, ट्रांसफर बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे को जिया से चेक आया और मैंने निशी को फॉरवर्ड कर दिया वो चेक, सिंपल एज दैट। तो सोच के बताना, जिया का चेक के पीछे, जिया से मुझे 5000 लेने थे, 5000 का चेक आया, ओके, वही चेक के पीछे मैंने एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ निशी, निशी को मुझे 5000 देना था, वही चेक मैंने एंडोर्स करके निशी को दे दिया। तो मुझे एक बात बताओ, ये पैसा मेरे बैंक तक गया कि नहीं? डिड माय बैंक रिसीव एनी मनी? No. Never. No. So in such a situation, endorsed check होता है ना, endorsed check. Endorsed check is always treated as cash. Endorsed check is always treated as cash. क्यों cash? क्योंकि आपके बैंक तक तो कभी पैसा गया ही नहीं, हमारे बैंक तक पैसा पहुंचा ही नहीं। जिया से चेक आया, निशी को गया, अजय से चेक आया, विजय को गया, संजय से चेक आया, राहुल को गया। आर यू गेटिंग दैट? तो एंडोर्समेंट मतलब क्या है? ट्रांसफरिंग द चेक इन फेवर ऑफ योर क्रेडिटर। डेटर का चेक किसी क्रेडिटर के फेवर में ट्रांसफर कर देना, उसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। ओके, तो एंडोर्समेंट की एंट्रीज ध्यान से देखना क्या होगी। पहले तो ये चेक किसके आया? मेरे को ये चेक आया मोनाली से। आई रिसीव्ड दिस चेक फ्रॉम मोनाली, लेकिन आगे क्या दिया है? इट वाज एंडोर्स्ड टू अनीता। तो मैं क्या एंट्री करेगा इधर? आई विल पास पहले कैश अकाउंट डेबिट टू मोनालीज अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू मोनालीज अकाउंट। आई विल ट्रीट दैट चेक लाइक कैश, आई विल ट्रीट दैट चेक लाइक कैश, नॉट बैंक। आई विल नॉट राइट बैंक टू मोनाली, बैंक तक पैसा गया ही नहीं है मेरा एंडोर्स चेक। तो कैश टू मोनाली कितना आएगा? 11,000. कैश टू मोनाली इट इज 11,000. This is being check received from Monali. Being check received from Monali. ठीक है, चेक रिसीव फ्रॉम मोनाली। अब यही चेक मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया किसको? अनीता को। अनीता को मैं चेक दे रहा हूं, बट विल आई राइट अनीता टू बैंक? थिंक। No. इज इट माय चेक कि आया हुआ चेक? No. आया हुआ चेक। So I will not write Anita to bank. I will write simply Anita to cash. I will write simply Anita to cash. तो मैं ऐसे ही वो endorsed check को I will treat it like cash only. Cash आया, cash गया. Got it? So endorsed check you always treat it like cash. Okay, the money never reaches our bank account. So your entry will be on the same day. You will pass Anita account debit to cash account. Anita account debit to cash account 11,000. Anita account debit to cash account in 11,000 being Monali's check endorsed to Anita. Monali's check endorsed. Yeah. Monali's check endorsed to Anita. Monali's check endorsed. तो यहाँ पे किसी को लगता है कि ये कैश कट होके डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं क्या? अनीता टू मोनाली कर सकते हैं। सेम डे पे होता है ना, तो कर भी सकते हैं। ओके, तो डिफरेंट डे पे जनरली एंडोर्समेंट होता है, तो डिफरेंट डेट पे करना होता है। तो सेम डे पे आप कर भी सकते हो, बट अवॉइड करना, सिंगल एंट्री करोगे तो बेटर ही है ऑलवेज। ओके, चेक आ रहा है और बाद में जा रहा है। Sir, even if this endorsement happens after 5 days, we don't have to include that. Never, you will never include bank in endorse, क्योंकि वही चेक पड़ा है ना। मेरे को आज चेक आया है जिया से, 5 दिन तक मेरे पास पड़ा था, फिर मैंने उसके पीछे साइन करके आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो जिया के बैंक से जाएगा ना पैसा, मेरे बैंक से थोड़ी जाएगा। जिया के बैंक से मोनाली के बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। मैं तो मिडल मैन हूं, मेरे को चेक आया, मैंने चेक ट्रांसफर कर दिया। Got it? तो endorsed check is always cash. Endorsed check is always cash. Yeah. अगर हमें अनीता को 10,000 ही पे करना है तो वो 1,000 का क्या एंट्री रहेगा? जो बच्चा है नहीं, पर वो तो 1,000 हमको ही मतलब मिलेगा ना। डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा ना। अनीता को अगर 10 देना है, मतलब अनीता को 11 की जगह 10 मतलब हाँ नहीं, अभी सपोज हमने मतलब मोनाली ने हमें 11,000 का चेक दिया और हमें अनीता को सिर्फ मतलब 9,000 ही देना था। हाँ, तो जो बच्चा जो 2,000 जो है
वो तो हाँ, मतलब हम लोग का प्रॉफिट तो होगा हम ना, लोग तो उसका क्या एंट्री नहीं नहीं रहेगा? नहीं नहीं, ऐसे सिचुएशन में पहले तो आप एंडोर्स ही नहीं करोगे। एंडोर्समेंट आप तभी करोगे जब आपको सेम अमाउंट देना हो, या एटलीस्ट उससे ज्यादा अमाउंट देना हो। तो उससे कम देना है ना, तो सपोज आपने एंडोर्स कर भी दिया तो आप उससे 2000 रुपये वापस ले लोगे कैश में, आपने 2000 ज्यादा दे दिया ना उसको। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको मुझे 15,000 रुपीज फीस देनी है, आपने मुझे 16,000 का चेक दे दिया, आपने मुझे 16,000 का चेक दे दिया, तो मैं आपको 1000 रुपीज वापस दे दूंगा कैश में, सिंपल। यार यहाँ કેટલા નેટવર્ક ઇશ્યુ છે, અડધો મારો ટાઈમ રીજોઈન થવામાં જ જાય છે યાર. I got it. You do one thing, आज तुमको कोई लेक्चर नहीं है ना सॉरी इसके सॉरी बाद, सॉरी. हाँ नहीं है अभी. तो you attend the second lecture also. Okay fine. Okay, चल. So can we combine these entries and just write Anita to Monali on 12? अनीता टू मोनाली है ना, सेम डेट पे हो रहा है ना एंडोर्समेंट, तब पॉसिबल है, तब कर सकते हो। बट जनरली दिस ओवर हियर यू कैन, ओके, बट ट्राई टू अवॉइड एंडोर्समेंट एंट्री सेपरेटली करोगे तो बेटर ही है। सेम डे पे भी सेपरेटली करो और डिफरेंट डे पे तो सेपरेटली करना ही है आपको, ठीक है? सेपरेटली करोगे तो बेटर है। कंफर्टेबल यहाँ तक? Sir, that bank and cash, if you are not depositing on the same day, that we have to see while receiving only, no? Right? Yes. Not while giving. Not while giving. Giving के वक्त तो any check is bank except endorsed check. Endorsed check आपका खुद का चेक नहीं है, इसके लिए I am writing cash. Otherwise, always any check given is bank. Any check issued is bank. Okay. Last entry in this sum, difficult वाला, difficult मतलब different वाला. The check received on 14th April is dishonored. The check received on 14th April is dishonored. The check received on 14th April is dishonored. Dishonored में क्या होता है? आपको बताया था मैंने, dishonor अभी बाउंस हो गया। तो क्या हमारा गलती था कि अनीता का, कि मोनाली का, किसका गलती? मोनाली का गलती था। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कितने चेक बाउंस हुए हैं? एक चेक की दोनों? दोनों चेक। तो कितना रिवर्सल एंट्री करना पड़ेगा? इसी का रिवर्सल, इसका रिवर्सल, की दोनों का रिवर्सल? दोनों का रिवर्सल। देखो लॉजिकली सोचो, आपको 5000 मिले थे, आपने 5000 फॉरवर्ड कर दिए, सामने वाले पार्टी ने बोला बाउंस, तो वो बाउंस होके आपके पास आया, ये बाउंस होके आपने वापस दे दिया। आर यू गेटिंग इट? तो दोनों का रिवर्सल एंट्री, तो दोनों को उल्टा करो, दोनों को उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा? मोनाली टू कैश, दिख रहा है यहाँ पे, कैश टू मोनाली का, मोनाली टू कैश, एंड अनीता टू कैश टू अनीता। लेकिन कैश तो ऑलरेडी कट हो चुका है, कैश इज ऑलरेडी कट, सो व्हाट आर यू लेफ्ट विथ? मोनाली टू अनीता, दैट्स योर डिसऑनर एंट्री। लॉजिक समझा इसका? मोनाली टू अनीता। वंस अगेन आई विल रिपीट, सी मोनाली वाज आवर डेटर, उसने अपने को चेक दिया, हमने वो चेक उठा के अनीता को दे दिया, बात फिट टू, दोनों सेटल हो चुके थे, डेटर क्रेडिटर राजी खुशी, all were happy go lucky, sitting in their homes enjoying the rains and pakoras. But what happened? The check got bounced. तो मोनाली आके अपने दरवाजे पे खटखटा के चेक देके चली गई, सॉरी अनीता आके चेक देके चली गई। अनीता ने बोला कि यार आपका चेक बाउंस हो गया, तो हम क्या अपने पास रख के बैठ जाएं? हमारा तो चेक था नहीं, किसका था? मोनाली का था। हमने वो चेक मोनाली को दे दिया, भाई तुम्हारा चेक बाउंस हो गया। तो हाउ मेनी रिवर्सल एंट्रीज? 2 एंट्रीज, दोनों को कैंसिल करना पड़ेगा, वापस कैश नलिफाई हो जाएगा, जैसे हमारे प्रीवियस एग्जांपल में किया है ऊपर, कैश नलिफाइड। तो व्हाट्स योर नेट एंट्री फॉर दिस डिसऑनर? मोनाली टू अनीता, मोनाली टू अनीता, हाउ मच? 11,000. Monali to Anita account 11,000. Monali to Anita 11,000 being checked dishonored. Okay. तो dishonored entry में कभी भी कैश दिख जाए तो नलिफाई हो जाएगा. Dishonored entry will always have bank. Okay. बैंक नहीं है तो ये पार्टी टू पार्टी.
इधर ये देखो, ये पूरा ट्रांजैक्शन का नेट इफेक्ट अभी क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब अभी सिचुएशन क्या है, वापस बैक टू 0। किससे पैसा लेना है, किसको पैसा देना है, बता सकते हो? Monali has to pay to Anira on behalf of us. हाँ, बेसिकली मोनाली हैज टू पे अस एंड वी आर सपोज टू पे टू अनीता. मोनाली हैज टू पे अस एंड वी टू पे टू अनीता. अगेन 11,000. डिड यू गेट दैट? बैक टू 0. एंडोर्स्ड चेक का मीनिंग समझा पहले? एंडोर्स्ड चेक बताओ. व्हाट डू यू मीन बाय एंडोर्स्ड चेक? एंडोर्स्ड चेक मतलब आया हुआ चेक किसी के फेवर में चला गया. ओके. एंडोर्स्ड चेक के लिए कौन सा अकाउंट यूज करना है, बैंक की कैश? ऑलवेज कैश. ऑलवेज कैश. एंडोर्स्ड चेक में कभी बैंक यूज नहीं करना है, हमेशा कैश यूज करना है. ठीक है. तो अपने बैंक में से ना पैसा आएगा ना पैसा जाएगा. अच्छा, एंडोर्स्ड चेक बाउंस होने का एंट्री समझ आई? दोनों को रिवर्स कर देना. आया हुआ चेक भी रिवर्स, गया हुआ चेक भी रिवर्स. कहानी खत्म. ठीक है. एंड दैट्स इट. लास्ट दो एंट्रीज तो सिंपल है. क्या दिया हुआ है पढ़ो. बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक. व्हाट शुड बी द एंट्री फॉर बैंक चार्जेस चार्ज? बताओ. बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक. बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक या बैंक चार्जेस डेबिट टू कैश? बताओ. बैंक, बिकॉज बैंक डायरेक्टली. बैंक चार्जेस टू बैंक. हाँ, ये एक ऐसा एक्सपेंस है. और इंश्योरेंस वगैरह वो सब आइटम्स, ये सब आपका बैंक के थ्रू ही पे होता है. बैंक चार्जेस कभी आप कैश में पे नहीं करते. हाँ, बैंक चार्जेस बताया था ना, पासबुक में कैंसिल हो जाता है. हर 3 महीने 6 महीने डेबिट होता है. तो बैंक चार्जेस आर ऑलवेज पेड वाया बैंक. बीइंग बैंक चार्जेस पेड. बीइंग बैंक चार्जेस पेड. बीइंग बैंक चार्जेस पेड. Telephone bill paid by check. Telephone bill paid by check. What is the entry? Telephone bill paid by check. Telephone bill account debit to bank account. Telephone expense account debit. Telephone bill, telephone सब चलेगा. Telephone charges to bank. ये बैंक क्यों लिख रहा हूं मैं पता है? क्योंकि I am giving it by check. आप कोई भी चेक इश्यू करते हो तो सोचने की जरूरत ही नहीं है. इश्यूड चेक इज ऑलवेज गोना बी बैंक. ओके. इश्यूड चेक इज ऑलवेज गोइंग टू बी बैंक. नो टू थॉट्स अबाउट दैट. सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹10,000. याद आ रहा है कुछ? आउटस्टैंडिंग मतलब सैलरी अकाउंट डेबिट. सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग अकाउंट. आउटस्टैंडिंग. हाँ, याद आया? इस महीने की सैलरी अक्रूवल सिस्टम. एक्सपेंस इनकर्ड मतलब एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड. बट इज मनी गोइंग आउट? नो. स्टिल एक्सपेंस तो डेबिट करना है, पैसा देना बाकी है. सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट. व्हाट इफ मैंने नेक्स्ट मंथ की सैलरी एडवांस में दी होती तो मैं क्या एंट्री करता? प्रीपेड सैलरी अकाउंट. प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. देन कैश इज गोइंग आउट. प्रीपेड सैलरी टू कैश. नेक्स्ट मंथ का अभी करते तो ये करंट मंथ का ही है, यही महीने का सैलरी है. दे देते तो सैलरी टू कैश. पेंडिंग रखा है इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए. टाइम आ गया. अक्रूवल सिस्टम टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट. टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट. सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट. दैट इज हाउ मच? 10,000 रुपीज. देना बाकी है. इट्स अवर लाइबिलिटी. दे देते तो कैश, देना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी. बीइंग सैलरी outstanding. That completes the problem. Okay. All for the day. आज इतना ही काफी है. And you just write the rules note for cash and check. आपके लास्ट साइड पे लिख लो या फिर आप आई थिंक जर्नल में मैंने दिया हुआ है. लेट मी सी. आपके जर्नल के शीट के लास्ट में है कि नहीं? यस 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 यस. रीड पॉइंट नंबर 11. यस, जर्नल के एंड में पॉइंट नंबर 11 पे आ जाओ सब लोग. चलो, जर्नल के शीट के पॉइंट नंबर 11 पे आ जाओ. एंड में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है ना आपको. दिखा? चेक रूल्स. पॉइंट नंबर 11 लास्ट में जर्नल शीट. पॉइंट नंबर 11 चेक रूल्स. डिड यू ऑल गेट दैट? चेक रूल. रीड. रिसीव्ड अ चेक, बैंक अकाउंट यूज करना है. सबको समझ आ रहा है? रिसीव्ड अ चेक, बैंक अकाउंट. रिसीव्ड अ क्रॉस चेक, स्टिल यू यूज बैंक अकाउंट. यू नो दैट, राइट?
received a check and deposited, same day आया check और deposit कर लिया, still you use bank account, right? Then check previously received now deposited, check previously received now deposited, so we write bank to cash for depositing it. और जब previously receive किया था तब क्या entry मारा होगा? Cash to party. Cash to party. Cash और अभी bank to cash. है दिमाग में? Cash to party and then bank to cash. जब previously receive किया था तभी cash to party और अभी bank to cash. That is for depositing. Issued a bearer or a crossed check. कोई भी check आप issue करो. Issue मतलब पैसा दे रहे हो. So it is gonna be bank. Except बैंक अकाउंट ही यूज करना है. endorse check. एंडोर्स नीचे है ना. हाँ. एंड एक्सेप्ट एंडोर्स चेक, राइट. एक्सेप्ट एंडोर्स चेक, सब कोई भी चेक दे रहे हो तो बैंक. देन रिसीव्ड अ बेरर चेक. जब आप बेरर चेक रिसीव करते हो तब क्या यूज करना है? कैश अकाउंट. याद है बोला था आपको अक्रॉस द काउंटर विड्रॉ कर सकते हो. बेरर चेक रिसीव्ड इज ऑलवेज कैश. नॉर्मल चेक के लिए बैंक, बेरर चेक रिसीव्ड के लिए कैश. एंडोर्स चेक के लिए ऑलवेज कैश. दिख रहा है वहां पे, आया तो भी कैश, गया तो भी कैश. एंडोर्स चेक इज ऑलवेज कैश. दिखा अभी अभी भी डिड. एंड चेक रिसीव्ड बट डिपॉजिटेड ऑन सम अनदर डे, तो दैट टाइम यू ट्रीट इट एज कैश एंड लेटर बैंक टू कैश. दैट इज रिपीटेड अगेन. आई थिंक अभी अभी डिस्कस किया. चेक रिसीव्ड बट डिपॉजिटेड ऑन सम अदर डे, तो पहले कैश ट्रीट करना और फिर बैंक टू कैश व्हेन यू डिपॉजिट दैट. That was about your rule of cash and check. Comfortable? Just revise this much. Revise the problem again. Okay. Homework आपको मिल जाएगा. And practice for the test properly. We are meeting next on Tuesday. Next lecture is on Tuesday. Still, if you have any doubts, you wait. Otherwise, you can leave. Tata, bye bye. See you. Take care. Bye, sir. Thank you. Bye, sir.